एक टाइम था जब बंगाल को बचाने के लिए एक औरत सड़क पर उतर आई थी। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी और सामने खड़ा था 34 साल का कम्युनिस्ट सिस्टम। लोग कहते थे कि ये लड़की बंगाल को बदल देगी। आज वही बंगाल पूछ रहा है, आखिर बदला क्या है? इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जिसे बंगाल की जनता ने 2011 में एज अ हीरो चुना था, वो 2026 तक डिक्टेटर कैसे बनी। एंड इस वीडियो में मैं ये भी लास्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे टीएमसी कभी भी अब वेस्ट बंगाल में रूल नहीं कर पाएगी। एंड लास्ट चैप्टर में मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे बीजेपी के सामने बाकी ओपोजिशन इतनी वीक क्यों लगती है, बीजेपी के सामने बाकी ओपोजिशन इतना हेल्पलेस क्यों लगता है, एंड ओपोजिशन को क्या ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो बीजेपी को अपोज कर पाए अच्छे से। ममता बनर्जी ने अपना पॉलिटिकल करियर सीपीआईएम से लड़ते हुए शुरू किया था। 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बंगाल में एक आयरन ग्रिप बना कर रखा था। Party of planning riots, the chief minister today joined the battle. আমার কাছে গোপন রিপোর্ট এসেছে পুলিশকে ইনভলভ করেছে। কিরকম ইনভলভমেন্ট? মসজিদ এলাকাগুলোতে দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। কেনই প্ল্যান করেছেন আপনি? কেন করেছেন? আপনারা আমায় বলতে পারেন আপনি এটা বলছেন কেন পাবলিককে? আমি বলছি এই কারণে আমি দাঙ্গা চাই না, তাই জ্বালিয়ে দিচ্ছি চক্রান্তটা যদি সাবধান হয়। पॉलिटिकल कंट्रोल, कैडर सिस्टम और सबसे बड़ा जनता का डर। কলকাতা শহরে দাঙ্গা লাগিয়ে দিল কেন বললেন এই কথা? পশ্চিমবাংলায় দেখবেন নির্বাচনী প্রচারের সময় কোনোদিন এইসব দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা ওঠেনি অতীতে। এই প্রথম তোলা হল বিজেপি দলের তাদের যে আরএসএস তার মুখপাত্র তারা ঘোষণা করেছেন যে তৃণমূলকে এই রাজ্যের সরকারে আসা উচিত। পরিষ্কার তারা কি চাইছেন। 1990 में एक कॉमरेड ने ममता बनर्जी के सिर पे लाठी मार दी एंड वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। उसके बाद भी उसने कम्युनिस्टों से लड़ना नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर थी, फिर जब उसे कम्युनिस्टों और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में इंटरनल दोस्ती लगी, तब उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया। ममता बनर्जी ने उसके बाद एनडीए को चूज किया और एनडीए में वो मेंबर भी थी एंड रेलवे मिनिस्ट्री में भी थी। उसके बाद ममता बनर्जी कभी रिजाइन कर देती थी, वापस ज्वाइन कर देती थी, वापस छोड़ देती थी एंड वापस ज्वाइन कर लेती थी। एंड इस सबसे तंग आके ममता बनर्जी ने फाइनली अपना तृणमूल कांग्रेस नाम का पार्टी बनाया। टीएमसी के फाउंडिंग मेंबर्स में शुभेंदु अधिकारी भी थे उनके साथ। साल आता है 2011 जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पूरी बहुमत से बंगाल की जनता ने जिताया। Your first reaction, you have said that 34 years there has been a law and order problem. You have also been targeted. What do you have to say today to the people? I don't mind for me, but so many people are being targeted, and you will appreciate that within this year. Though I should not mention all this today, it's a detailed discussion. If you want, I can give you the extra interview after a few days, because more than 75,000 people are killed, and in Bengal, it's a fact, it's a history that 34 years nobody was allowed to cast their vote. Even when they allowed to cast their vote, well, it started since 2008 and 2009 at the time of parliament election. You have seen, and that we continue. That this time, even I congratulate the election commission and the full team also, and the administration, government of India and everywhere, even the Bengal people also. At least they allow the people to cast their vote, and except 15-20 areas, I think out of 294, they allow the people to cast their vote. Wherever the people have got their voters right, they have given vote in favor of us. I am really grateful, and we are obliged to our people. But you have also been targeted all this year. You say 75,000 people have died in 34 years. Are you going to let it go, or are you going to bring the culprits to book? No, you see, our main motto is 1, 2, 3. 1 is good governance. Number 2, to restore the democratic situation. Here the autocracy is going on, and the Marxist government means government of the Marxists, by the Marxists and for the Marxists. The politicize the administration like anything. So our motto, to restore the politicized administration, it should work impartially. I want to see the impartial smile and impartiality. We must obey our constitutional obligation and commitment. And बंगाल की जनता में वैसा ही डर था जैसे आज तृणमूल कांग्रेस के लिए है। चुपचाप फूल छाप, ऐसा उनका स्लोगन था। एंड जो बंगाल की जनता है उस टाइम भी वायलेंस को फेस किया, क्योंकि उस टाइम भी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। इस बार तो सीआरपीएफ की टुकड़ी थी, इसलिए उतना वायलेंस नहीं हो पाया, लेकिन उस टाइम भी उतना ही उत्साह, उतना ही एक्साइटमेंट था लोगों को सीपीएम से छूटने के बाद, कि उनका एक तरह का काला बादल हट गया था। उसी टाइप की सेलिब्रेशन हुई थी जैसे आज हो रही है। एंड बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी के मुंह से निकला हुआ सोनार बांग्ला का सपना पूरा होते हुए दिखाई दिया। एंड वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स को मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में एंड समराइज करके बताया है, आपको यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको पूरा का पूरा ड्रामा समझ में आ जाएगा वेस्ट बंगाल में क्या क्या हुआ है। और उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि टीएमसी इस बार नहीं जीतने वाली। एंड
बंगाल की जनता खुश थी इस बात को लेकर कि उनको लग रहा था कि उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बदल दिया, लेकिन उन्होंने सिस्टम नहीं बदला था, उन्होंने सिर्फ पावर चेंज किया था। जो सीपीआईएम के कैडर थे, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने बस अपने ऑफिस के सामने से लाल झंडा हटा के तृणमूल कांग्रेस का झंडा लगा दिया। लोग सेम थे, बस उनके मुंह से निकलने वाला स्लोगन बदल गया। सिंडिकेट राज वैसा का वैसा ही चल रहा था, कट मनी थ्योरी वैसी की वैसी ही इंप्लीमेंट हो रही थी। एंड 1977 से लेकर 2011 तक जितना पॉलिटिकल मर्डर्स हुआ है वेस्ट बंगाल में, उससे भी ज्यादा 2011 से 2026 में हो गया। एंड मैं एटलीस्ट एनडीए सरकार से ये उम्मीद करूंगा कि ये सिंडिकेट राज और ये कट मनी, इस टाइप का सिस्टम एनडीए सरकार में तो एटलीस्ट ना हो। फिर चालू होता है स्कैम्स का दौर वेस्ट बंगाल में। सबसे बड़ी स्कैम थी एसएससी एग्जाम स्कैम, जिसमें नौकरी कौड़ियों के नाम पे बिक रही थी टीएमसी नेताओं के द्वारा। एंड जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे और उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके घर से कैश में करोड़ के करोड़ ईडी ने जब्त किए। फिर होता है शारदा पोंजी स्कैम। उसमें क्या होता है कि लाखों लोगों का जो पैसा था वो डबल करने का जो वादा होता है, आप लोगों ने देखा होगा हेरा फेरी में 21 दिन में पैसा डबल, वैसा टाइप का ही स्कैम वेस्ट बंगाल में लाखों लोगों के साथ हुआ था। 11 टीएमसी नेताओं के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ और वो इन हैंड कैश लेते हुए पकड़े गए। फिर संदेश खली जैसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे टीएमसी के नेता शेख शाहजहां के ऊपर और उनके जो वर्कर है उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि वो पार्टी ऑफिस में वहाँ की जो फीमेल थी, जो हिंदू कम्युनिटी की थी, उनको फिजिकली असॉल्ट किया जाता है। फिर आरजीकर केस होता है जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ अब्यूज होता है। इतना बुरा होने के बाद टीएमसी ने वहां पे रेनोवेशन का काम चालू कर दिया और सारी की सारी एविडेंस टेम्पर हो गए। और जब प्रोटेस्ट हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट करने आ गई। एंड ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर के लिए प्रोटेस्ट किया, जबकि ये तीनों डिपार्टमेंट ममता बनर्जी की थी। और बंगाल की जनता को सबसे बड़ा शॉक और सबसे डिस्कस्टिंग बात ये लगी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो खुद एक फीमेल है, उन्होंने एडवाइज किया, मतलब पब्लिकली ये अनाउंस किया कि लड़कियों को 8 बजे के बाद कपड़े पहन के या कुछ भी करके घर से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। ममता बनर्जी ने जिस डिक्टेटरशिप को हरा के 2011 में पावर हासिल की थी, उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर अपना डिक्टेटरशिप का नकाब दिखा दिया। एक प्रोफेसर थे अम्बिकेश महापात्रा, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे जादवपुर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप पे ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर कर दिया था किसी के साथ, और उन्हें कॉलेज में मतलब पढ़ाते हुए, मतलब वो फैकल्टी थे, पढ़ाते हुए उनको स्टूडेंट के सामने अरेस्ट करके ले गए। एंड लाइव टीवी डिबेट में ममता बनर्जी ने उस प्रोफेसर को माओइस्ट घोषित कर दिया। मीन्स ममता बनर्जी ने डायरेक्ट उस प्रोफेसर को नक्सलवादी डिक्लेयर कर दिया। कोलकाता की सड़कों पर वोट मांग रहे ये हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अम्बिकेश महापात्रा। साल 2012 में फेसबुक पर ममता का मजाक उड़ाने वाला कार्टून पोस्ट करने की वजह से प्रोफेसर महापात्रा को जेल की हवा खानी पड़ी थी। बाद में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने का केस भी दर्ज किया था। दोनों मामले कोर्ट में चल रहे हैं और फिलहाल प्रोफेसर महापात्रा जमानत पर हैं। तो आपको माओवादी बनाया, अरेस्ट किया, जेल हो गया, क्रिमिनल केस चल रहा है। दिस इज अटैक ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसी के बदले में पब्लिक इसका इन्वेस्टिगेशन। जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो स्टूडेंट्स तक को उन्होंने इस वर्ड से, डेरोगेटरी वर्ड से संबोधित किया, लाइक नक्सलवादी या टेररिस्ट, ऐसा टाइप का उन स्टूडेंट्स के खिलाफ ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था। एंड कोई भी जर्नलिस्ट ममता बनर्जी से इस कार्टून को रिलेटेड कोई भी सवाल पूछता था तो उस जर्नलिस्ट के खिलाफ वो अरेस्ट वारंट निकलवा देती थी एंड वो जर्नलिस्ट जेल में मिलता था। एक वेस्ट बंगाल की लड़की गुरुग्राम में रह के एक सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर देती है ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी ने अपना वेस्ट बंगाल पुलिस का यूज किया, उस गुरुग्राम में जाके उस लड़की के पीजी से उसको अरेस्ट करवा के वेस्ट बंगाल में जाके वहां पे आके केस किया। एंड बंगाल के लोग इतना शॉक थे कि जिस सिस्टम, जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ममता बनर्जी को वोट मिला एंड जिस फ्रीडम स्पीच का बात करती थी ममता बनर्जी, आज उसी का गला घोट रही है ममता बनर्जी। अब बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा इशू क्या था और क्यों वेस्ट बंगाल के लोगों ने इस बार टीएमसी का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। सबको पता है कि वेस्ट बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और उसके बगल में जो देश है बांग्लादेश, वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स हजारों के मामला में रोज आते हैं। एंड सबसे बड़ा एलिगेशन टीएमसी पे ये लगता है कि वो इन इलीगल इमिग्रेंट्स को अपना वोट बैंक समझते थे एंड उनको फूड, शेल्टर और वोटर आईडी कार्ड तक भी देते थे। और ममता बनर्जी का ओपनली माइनॉरिटी को अपीज करना
वो भी लाइव स्टेटमेंट है। एंड टीएमसी के नेता हिंदू कम्युनिटी के जितने भी लोग थे, मेजोरिटी ऑफ लोग, उनके खिलाफ ओपनली मॉकिंग करते थे, उनको मजाक उड़ाते थे, उनको थ्रेट देते थे। और स्टेट के कई सारी डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, कम्युनल राइट भी देखने को मिला, वो भी एक तरफा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ ओपनली मॉकिंग करती थी, ओपनली थ्रेट देती थी एंड ओपनली उनको मार्क करके उनके घर जलाए जाते थे एंड उनको हर्ट किया जाता था, उनको हार्म किया जाता था और कई केसों में तो उन्हें मारा भी गया। इसीलिए वेस्ट बंगाल में आपको इस बार हाई रिवोल्ट मिला एंड 93% वोट टर्नआउट हुआ है इस इलेक्शन में, जो कि कोई भी डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा वोट टर्नआउट है। ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक था बंगाली वुमेन्स, जो उन्हें भर भर के वोट देते थे, लेकिन इस बार उनका भी टर्नआउट हो गया टीएमसी से। ममता बनर्जी ने बहुत सारे अच्छे वेलफेयर स्कीम्स लाए थे, जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था ग्राउंड लेवल में। कन्याश्री स्कीम जो थी वो गर्ल्स को, मतलब माइनर गर्ल्स को कुछ पैसे देते थे एंड उस स्कूल ड्रॉप आउट रेट लड़कियों में बहुत ज्यादा कम हुआ। लक्ष्मी भंडार जैसा स्कीम जो हर वुमेन को मिलता था उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। रूपश्री जैसा स्कीम जो अर्ली मैरिड वुमेन को मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। स्कीम्स का इम्पैक्ट रियल था, लेकिन जॉब्स, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट वो नहीं थी। बंगाल का यूथ हेविली दूसरे स्टेटों में माइग्रेट कर रहा था। वेलफेयर स्कीम से सर्वाइवल तो हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ से किसी भी स्टेट का रियल फ्यूचर डिसाइड होता है। प्रॉब्लम ममता बनर्जी नहीं थी, प्रॉब्लम वो सिस्टम था जो सीपीआईएम ने बनाया था, उसको टीएमसी ने यूज किया। एंड आगे जो गवर्नमेंट आएगा या तो उसको रोक सकती है या तो उसको भी यूज करके बंगाल की जनता को एक्सप्लॉइट कर सकती है। अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ इस इलेक्शन के। बंगाल एक हाईली एजुकेटेड और वेल सिविलाइज्ड और बहुत ज्यादा एडवांस कल्चर रहा है और बाकी इंडिया से। जिस मिट्टी से रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताएं निकले हैं, वो मिट्टी बंगाल की है। ये स्टेट कोई भी पार्टी का डिक्टेटरशिप डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। ये स्टेट हर बार रिवोल्ट करता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने रिवोल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वैसे यहाँ के लोगों ने सीपीआईएम को रिवोल्ट किया, वो हटी, फिर टीएमसी ने अपना रंग दिखाया, फिर उसने टीएमसी को भी रिवोल्ट किया और आगे अगर एनडीए सरकार ने वापस ऐसा डिक्टेटरशिप किया तो यहाँ की जनता बीजेपी तक को भी नहीं छोड़ेगी, बीजेपी को भी हटा देगी। और ये लास्ट चैप्टर आप लोगों को जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं ऑपोजिशन कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी एक 24/7 वर्किंग करने वाली पार्टी है। बीजेपी में एक छोटा सा वर्कर से लेके देश का प्रधानमंत्री उसी जोश में और उसी रिदम में काम करता है जैसे वो एक ही कंप्यूटर के कीबोर्ड्स हो। जहां असम जैसे स्टेट में जहां बीजेपी को प्योर श्योर था कि वही जीतने वाले हैं, वहां पे भी उन्होंने 24/7 काम किया कि एक भी चीज उनसे मिस ना हो। एंड वेस्ट बंगाल में उन्होंने ग्राउंड रूट लेवल में आरएसएस और अपने जो भी नेता थे, क्यों वो हारे पिछले बार इलेक्शन में, क्या डर था, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग किया, सीआरपीएफ लगाए, एसआईआर किया, साम दाम दंड भेद करके भी उन्होंने उस स्टेट को जीत लिया। एंड जहां पे रिजल्ट दे था तो राहुल गांधी जो ऑपोजिशन के मेन लीडर है वो इंडिया में ही नहीं थे। इंडिया एक इमोशन ड्रिवन कंट्री है एंड ऑपोजिशन को अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से भी ज्यादा उनको अपना नेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा जनता को, उससे भी ज्यादा आपको मेजोरिटी को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी ही डिसाइड करती है कि कौन जीतने वाला है। जितनी भी पॉलिसी भाजपा लेके आती है वो जनता को एज अ देश की सेवा या देश का गौरव बढ़ाने वाला सेवा वैसे प्रेजेंट करती है। एंड ऑपोजिशन को मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जितना अच्छा पॉलिसी बीजेपी शो करती है, आप उससे भी ज्यादा प्रो इंडिया पॉलिसीज आप सिटीजन को शो करें। लेकिन इंडिया का ऑपोजिशन उन्हें ही मॉक करने पे लगा हुआ है जो मेजोरिटी वोट बैंक है उनके। इंडिया को ऑपोजिशन का दिमाग पता नहीं कहाँ पे है। इंडिया का ऑपोजिशन ये सोचता है कि मेजोरिटी लोगों को मैं मॉक करके माइनॉरिटी से वोट लेके मैं जीत जाऊंगा, जो कि कभी नहीं होने वाला, जो बीजेपी ने पहले ही क्रैक कर लिया। बीजेपी को जहां पता है कि ये कम्युनिटी या ये एरिया से मुझे वोट नहीं मिलने वाले, वो वहां पे टच भी नहीं करता, वो मेजोरिटी को टारगेट करता है। तो ऑपोजिशन को किसने रोका है? ऑपोजिशन भी मेजोरिटी को टारगेट करे। आपका मेन गोल क्या है? आपको सेक्युलर रखना है देश को, आपको देश को डिक्टेटरशिप से बचाना है, तो एटलीस्ट मेजोरिटी के साथ ही आप डिक्टेटरशिप से बता पाओगे ना। एंड इंडिया तभी तक सेक्युलर है जब तक मेजोरिटी में हिंदू है। आप सोच रहे हो कि माइनॉरिटी को लेके आप एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करोगे, वो ख्वाब है। जहां जहां इंडिया का जो माइनॉरिटी है उनकी जब वो मेजोरिटी में आए हैं, वहां पे डिक्टेटरशिप या उनकी रिलीजियस जो लॉ लगती है वही लगती है।
डेमोक्रेसी का उसमें कोई सवाल नहीं होता। आप अपने नेबर कंट्रीज में देख लीजिए, जिनके पास चांस था वो डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना रिलीजियस लॉ चूज किया। मैं ऑपोजिशन को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपको बस बीजेपी से ज्यादा नेशनलिस्ट बनना है, ज्यादा मेजोरिटिज्म को प्लीज करने वाला बनना है। आप माइनॉरिटी का छोड़िए, माइनॉरिटी खुशी रहेंगे, कोई इस देश में किसी को मारने काटने के लिए नहीं बैठा हुआ है, बट आपको मेजोरिटी को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। आप एजुकेशन, जॉब्स इस पे घेर सकते हैं। जब तक आप रिलीजियसली सोचेंगे इस गेम को, तब तक बीजेपी जीतती रहेगी, क्योंकि बीजेपी को अपना वोट बैंक अच्छे से पता है, आपको अपना वोट बैंक अच्छे से नहीं पता। आपके खिलाफ अगर कोई माइनॉरिटी का कोई बंदा भी खड़ा हो गया ना, तो आपका सारा वोट बच जाएगा। लास्ट एडवाइस है ऑपोजिशन की, प्लीज बीजेपी जितनी मेहनत करती है कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए, आप भी उतना ही मेहनत करें, ठीक है। कोई आपको नहीं रोक रहा है, अभी डिक्टेटरशिप नहीं आई है, लेकिन 10-15 साल अगर और बीजेपी रही तो आप बस पर्चा भरते रह जाइएगा, आप कभी नहीं जीतोगे। अभी आपके हाथ में फेयर गेम है, आप अभी भी अडेप्ट कर सकते हो, तो प्रो इंडिया बन जाइए, आप देशभक्ति में डूब जाइए, आप इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको आंखों पे रखिए, ठीक है। लोग आपको भी वोट देंगे। इंडिया का ऑपोजिशन माइनॉरिटी अपीजमेंट में अटका हुआ है, और मेजोरिटी जो वोट बैंक है, जो बीजेपी को वोट देते हैं, उसको मॉक करते रहता है या उसको टेक फॉर ग्रांट ले लेता है। एक गलती है जो टीएमसी और बाकी ऑपोजिशन पार्टी करती है, वो है कि बीजेपी को अपोज करने के अलावा वो सारे काम करती है। जहां उसे बीजेपी को पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए था स्ट्रांगली, एंड जहां पे बीजेपी शासित प्रदेश को मुद्दा उठाना चाहिए था कि वो वहां नहीं ठीक कर पा रहे तो यहाँ क्या ठीक करोगे, उसके अलावा उन्होंने डायरेक्ट मेजोरिटी जो वोटर्स हैं उनको थ्रेट करना चालू कर दिया। हिंदू मेजोरिटी एरिया में जाके वहाँ के औरतों को एंड वहाँ के मर्दों को आप अब्यूज करने का थ्रेट दोगे, वहाँ के लोगों को आप मारने का घर मार्क करके रखेंगे कि जीतने के बाद आपका घर जला देंगे अगर आपको वोट दिया, तो आपको क्या लगता है कि सीआरपीएफ के होते हुए आप ये काम कर पाओगे? आप इतना डरा धमका पाओगे एंड आपको क्या लगता है वो आपको वोट देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऑपोजिशन अगर सोचता है कि वो 80% का सेंटिमेंट्स हर्ट करके उनको मॉक करके कोई भी इलेक्शन जीत जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी, आप अगले 100 साल तक वैसा करके कभी नहीं जीत पाओगे। एंड अभी का अपडेटेड न्यूज़ ये है कि जो ममता बनर्जी है उन्होंने रिजाइन देने से मना कर दिया। एंड उनको एक छोटी सी बात ये नहीं पता कि अगर वो ज़्यादा दिन तक रिजाइन ना दे तो गवर्नर सभा बैठा के मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए बोल सकते हैं, एंड वहाँ पे जब मेजोरिटी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बीजेपी को शासन मिल जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी एक चीप ट्रिक यूज कर रही है डिले करने का, क्योंकि जब तक वो डिले करेगी तब तक वो अपने जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी जो घोटाले घपले स्कैम्स जो उन लोगों ने पार्टी ने किया है वो छुप जाएगा। एंड ये चिप ट्रिक अब काम नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी ऑफिसेस हैं जहाँ पे फाइल्स हैं, कोर्ट्स हैं, वहाँ पे सीआरपीएफ की बंदोबस्त हो चुकी है, एंड वहाँ पे अब कोई भी जा नहीं सकता ना आ सकता है। इसलिए वो चाह रही है कितना से कितना डिले कर सके। एंड जितने भी ऑपोजिशन पार्टी हैं बाकी स्टेट के, वो शायद इन्फिल्ट्रेट करेंगे वेस्ट बंगाल में, एंड शायद शक्ति प्रदर्शन या और भी ज़्यादा वायलेंस हमें देखने को मिल सकता है। एंड जितने भी चार्जेस हैं, केसेस हैं जो फाइल्स हुए हैं कोर्ट में या सुप्रिटेंडेंट के पास फाइल हुए हैं, वो जितना से जितना जल्दी खत्म हो सके। बी मोर नेशनलिस्ट देन बीजेपी, बी मोर डेवलपमेंट फोकस देन बीजेपी, एंड बी मोर हार्डवर्किंग एंड सीरियस इन इलेक्शन देन बीजेपी। तभी फाइट पॉसिबल है। रिजल्ट डे के दिन आप थाईलैंड घूमो या कोई भी फॉरेन ट्रिप लगाओ, वैसे में जनता समझ जाती है कि आप सीरियस नहीं हो इलेक्शन के लिए। एंड दिस इलेक्शन वाज टीएमसी's लास्ट इलेक्शन, एंड आफ्टर दिस इलेक्शन टीएमसी इज इररिलेवेंट इन वेस्ट बंगाल। अगर आपको मेरी कही गई कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि क्या लाइन मैंने गलत बोला होगा। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू बंगाल की जनता, आपका जो नेक्स्ट इशू है बंगाल के लिए वो आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड अपना वॉइस रेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद।